Hi student, welcome to my online class. Today we discuss class 9 science chapter 2. Okay, so in chapter 2 last class also we have discussed some separation techniques like evaporation, filtration, separation, separate by separating funnels and distillations. All this process we are already discussed. So now we discuss another one type of technique, that is the water crystallizations. Okay, so crystallization is the process. Okay, here we get the pure copper sulfate from impure samples. Okay, how can you obtain pure copper sulfate from impure one? By the process of crystallization. So crystallization is the process by which we get pure solids in the form of its crystal from a solutions. एक सॉल्यूशन से उसको हम उसका प्योर क्रिस्टल फॉर्म में जो मिलता है सैंपल, उसको बोलते हैं क्या? क्रिस्टलाइजेशन. ओके, ये क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होता है कैसे है? ओके, ये एक्टिविटी बेस्ड ओके प्रोसेस है. जैसे कि पहले क्या करना है, कंटेनर में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन को डिजोल्व करना है. कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला है CuSO4 और दिस वन आर द ब्लू इन कलर्स. ओके, we are dissolved, then first filtrate these solutions with the help of a filter paper. उसको फिल्ट्रेट करना है. फिल्टर करने के बाद जितना इम्प्योरिटीज है वो फिल्ट्रेट हो जाएगा फिल्टर पेपर फिल्टर करने से. फिर we have to heat boil these solutions and to achieve their saturation levels. Okay, up to we are boiling and we are cool it for a 1 days. Okay, then this one change into a crystal form. Okay, and this crystal are the pure form of the copper sulfates. Okay, so what are the applications of this process? These processes are used for the purification of salt. We know that the salt NaCl, the common salt, this one used in our as food or daily lives. Okay, so common salts we are used, and these common salt are obtained from sea waters. And sea water contain many types of impurities and others minerals also. So how can you filter this one? By the process of crystallizations. Okay, and another application, this one, separation of crystal of alum. Alum water, the commonly known as water fitkiri. Okay, fitkiri are used in that time we are just said. Okay, so during the time use the fitkiri, and this fitkiri are this is the one antiseptic. Okay, properties in fitkiri, that's why we are used. And this one also we get the pure fitkiri by the process of water crystallizations. Okay, and this crystallization process are better for the evaporation process. Okay, it is a better process from evaporation process. In evaporation process, water we are heated or boiling, then some that time crystal we get in the finally many impurities are also present, because only water are evaporate or the particles of the impurities are left there. That's why it is the best method. Okay, for to get the pure sample of the solutions. Okay. So this is another type of techniques. How can you get pure waters? Okay, water purification system. Okay, जैसे कि हम लोग को होम में जो वाटर सप्लाई होता है वो क्या है, प्योर वाटर आता है जो हम लोग को ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूजफुल होता है. ओके, सो वो वाटर जो जैसे रिजर्वर से आता है वो उसका बहुत सारा स्टेप उसको फॉलो करके वो हमारा पास जो घर में टेप वाटर जो पहुंचता है. तो हम उसको अभी देखते हैं कि क्या क्या स्टेप उसमें लेके वो वाटर प्यूरिफाई होके आता है. लेकिन मेनली जो जनरली जो वाटर रहता है वो इम्प्योर फॉर्म वाटर रहता है. तो उसको सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले, उनको डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले ये सब प्रोसेस उसमें अप्लाई करते हैं. फिर जाके उसको हम पीने का लायक और ड्रिंकिंग के लिए सुइटेबल होता है. जैसे कि ये एक रिजर्वर है, इसमें बहुत बड़ा टैंक है ये. ओके, इसमें वाटर स्टोर है. ओके, ये स्टोर वाटर क्या होता है, पहले आके एक सेडिमेंटेशन टैंक में आता है. सेडिमेंटेशन का प्रोसेस क्या है, इसमें वो जितने भी सारा स्टोन हो गया और हेवी पार्टिकल्स जितना भी है ये सब नीचे रह जाता है. ओके, सेडिमेंट हो जाता है.
ओके, टू अलाउ सॉलिड टू सेटल। इसमें जितना भी सॉलिड पार्टिकल्स है ये सेटल हो जाता है और ऊपर से जितना भी वाटर है वो फ्लो होके एक टैंक में जाके डिपोजिट होता है। ओके, ये टैंक का नाम है क्या, लोडिंग टैंक। इसमें ये जितना भी वाटर है वो लोड होता है और उसमें क्या होता है, सेडिमेंटेड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। इसमें भी क्या होता है, जितना इम्प्योरिटीज है इसमें सस्पेंडेड होता है, मतलब इसमें सेपरेट हो जाता है ये टैंक में। ओके, तो उसके बाद और एक टैंक में आता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टैंक है। ओके, ये फिल्ट्रेशन टैंक है। क्या है, इसमें वाटर फिल्ट्रेट होता है। ओके, फिल्ट्रेशन टैंक में आता है, इसमें वाटर में जितना भी इम्प्योरिटीज है इसमें फिल्ट्रेट होता है। इसमें क्या क्या, ये फिल्ट्रेशन टैंक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या लिया गया है, कुछ कोर्स ग्रेवल लिया गया है, छोटा बड़ा साइज का स्टोन, और कुछ ग्रेवल लिया है छोटा छोटा टाइप का स्टोन, और कुछ क्या है, फाइन सैंड लिया है। सैंड क्या है, ये प्यूरिफिकेशन वाटर में बहुत हेल्प करता है और उसमें वाटर क्या करता है, जो बहुत सारा पार्टिकल्स भी रहता है उसको फिल्टर करके छोड़ता है। ओके, जैसे कि हम लोगों का जो सी वाटर वो बहुत क्लीन रहता है। ओके, क्योंकि उसमें सैंड और ये स्टोन ये सब प्रेजेंट रहता है। ओके, तो ये फिल्ट्रेशन टैंक में क्या होता है, जितना भी यहाँ का जो गंदगी वाटर है इसमें क्या होता है, फिल्ट्रेट होता है। जितना भी इम्प्योर पार्टिकल्स है इसमें ये फिल्टर होके आता है और एक टैंक में, इसका नाम है क्या, क्लोरिनेशन टैंक। क्लोरिनेशन टैंक क्या है, इसमें हम लोग को पता है पहले से क्लोरीन टैबलेट यूज करते हैं फॉर दी किलिंग ऑफ दी जर्म। ओके, इसमें जितना भी बैक्टीरिया जर्म है ये इसको इसमें किल करके मार देता है और इसको पूरा 100% जो हम लोग को पीने का लायक का वाटर इसमें हो जाता है क्लोरिनेशन टैंक में। इसमें जितना बैक्टीरिया है उसको किल करके। ओके, उसके बाद क्या होता है, हमारा जो होम टू होम, जिसमें हमारा घर का जो टैप वाटर जो हम लोग के पास पहुंचता है। ओके, सो ये सब क्या है, एक एक स्टेप है। ओके, हाउ टू गेट प्योर वाटर। ओके, this is the water supply system. Okay, it is also a best method, okay, to get the water, pure waters. Okay, so this is the most of the technique. About all other techniques are already over. Okay, so all of you are request to, okay, stay home and continue your learning process. Okay, and any doubts please contact me or comment me. Okay, so next class we are discuss another topic of these chapters. Okay, because these chapters are the most important for you. Okay, most of the questions are come from these chapters. Okay, thank you for watching.